Hello, welcome all to our YouTube channel Gyan Academy. Myself, Dr. Jasdeep, and I will be discussing plus 2 class physics with you. So, presently, we are discussing chapter 1, which is related to electric field and charges. तो आज मैं आपके साथ बड़ा एक ब्यूटीफुल सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, विच इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल. As usual, we will start with the very basic, and then we will try to do certain derivations related to electric dipole, and finally we will try to solve some numericals which will be helpful in building your foundation related to the concepts. और उसके साथ ही थोड़े हम वैसे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे which are also equally important, not only from the board point of view but also they are equally important from the competition point of view. ठीक है. So with this we will start with our today's topic. So electric dipole, सबसे पहले तो we will try to discuss that electric dipole होता क्या है. और आपने केमिस्ट्री की क्लास में भी सुना होगा डाइपोल मूवमेंट. For water molecules there is a dipole moment which exists between hydrogen atom and oxygen atom. So it is something which is also related to that. तो सबसे पहले तो we will try to understand what actually dipole is. तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास दो चार्जेस हैं. कंडीशन ये होगा हमेशा कि दिस टू चार्जेस दे शुड बी ऑफ नेगेटिव पोलैरिटी, सॉरी ऑपोजिट पोलैरिटी, एंड दे शुड बी ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड. तो जैसे एक चार्ज मेरे पास अगर माइनस क्यू है तो अदर चार्ज इट नीड टू बी प्लस क्यू, क्योंकि पोलैरिटी ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड दोनों का एक है. तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू एंड क्यू, पर पोलैरिटी डिफरेंट है. When they are separated by a very minute distance. By minute distance I mean that distance between these two charges, it should be of a very minute scale. Either it should be in nanometers or it should be in microns. तो बहुत ही क्लोज रहेंगे एक दूसरे के लिए ये दोनों चार्जेस. दे फॉर्म ए डाइपोल एंड वी कॉल दिस डाइपोल ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल. और एक तो डिस्टेंस उनमें बड़ा छोटा चाहिए दो चार्जेस में, और एक जो हमने दूसरी कंडीशन डिस्कस की थी, चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड एंड opposite polarity. अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का एग्जैक्टली सेम होगा. तो दिस इज व्हाट मेक्स ए इलेक्ट्रिक डाइपोल. और एक बार थोड़ा सा हम इसकी डेफिनेशन भी लिख देते हैं. टू इक्वल मैग्नीट्यूड but opposite polarity charges when are separated by a infinitely small distance they form electric dipole. So this is the definition of a dipole. Then there is another property which is related to electric dipole. जैसा कि मैंने कहा केमिस्ट्री में भी आपने इस प्रॉपर्टी को सुना होगा. इट इज द डाइपोल मोमेंट.
it is the dipole moment. So what actually dipole moment is, we generally represent it with symbol P, and it is a vector quantity. तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी रहेगा. तो हमेशा याद रखिएगा कि डाइपोल मोमेंट है जो, इट इज ऑलवेज फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज. सो फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. तो ये इसका डायरेक्शन है, और इसके यूनिट्स जो हैं दे विल बी, यूनिट डिस्कस करने से पहले इसका मैग्नीट्यूड डिस्कस कर लेते हैं. तो आवर डाइपोल मोमेंट, इट इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस. और एक जस्ट छोटी सी बात याद रखिएगा कि whenever we take the distance between two charges, instead of taking it like L, we take it 2L. उसका एक रीजन है, वो जो टाइम आपको समझ आएगा when we will be progressing in this lecture. अगर डिस्टेंस 2L है तो सेंटर से एक चार्ज का डिस्टेंस L है और सेंटर से दूसरे चार्ज का डिस्टेंस भी L है. तो मतलब कलेक्टिवली 2L डिस्टेंस है, सेंटर से LL है. तो इट विल बी चार्ज इनटू डिस्टेंस. तो अगर अब हम यूनिट डिस्कस करें, वी नो चार्ज इट इज ऑलवेज इन कूलम and distance it is in meters. So SI units of dipole moment, they are a coulometer. So we have discussed what dipole is, what is the definition of dipole, और conditions क्या हैं जो dipole बनाएंगी. ठीक है, तो charges चाहिए हमें, they should be of equal magnitude, but polarity wise they should be opposite, and they should be separated by a infinitely small distance. और वो डिस्टेंस क्या होगा, इट विल बी इन माइक्रॉन्स और इट विल बी इन न्यूटन मीटर्स. ठीक है, और एक हमने दूसरी एक प्रॉपर्टी डाइपोल मोमेंट के साथ, एक दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस की है, विच इज डाइपोल मोमेंट, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी विच ऑलवेज गो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा. इसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस. बोर्ड एग्जाम में कई बार तो सीधे की सीधे ये डेरिवेशन ही पूछ लेते हैं, और अगर कंपटीशन एग्जाम में भी, इफ यू आर टू बी वेरी कंफर्टेबल विद ऑल द न्यूमेरिकल्स व्हिच कम इन द कंपटीशन, if you know the derivation, you can do any numericals which are related to it. So we will discuss 3 derivations. तो वो derivations क्या क्या हैं. तो अवर पहली derivation रहेगी, it will be electric field due to dipole at distance say x from center. एक तो हम ये वाली डेरिवेशन करेंगे, हम देखेंगे एक्चुअल में है क्या. इसके सिमिलर ही हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट डिस्टेंस x from center at a perpendicular. ठीक है, और तीसरी जो हम करेंगे डेरिवेशन, इट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट इन द स्पेस. ठीक है, तो सबसे पहली डेरिवेशन रहेगी टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर. तो जैसे ये मान लीजिए 2 चार्जेस हैं डाइपोल के, इनके सेंटर से x डिस्टेंस,
इसे हम एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑन द एक्सिस। तो आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। दूसरी डेरिवेशन हम करेंगे कि वी हैव ए डाइपोल, this two makes the dipole. We will calculate the electric field at a perpendicular distance from a center, ठीक है, एट एक्स। तो ये भी हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। और थर्ड हम जो डिस्कस करेंगे, ये जो पहली दो अभी मैंने डिस्कस की हैं, दे आर एग्जैक्टली द सबसेट ऑफ थर्ड। पर थर्ड हमें तभी समझ आएगा जब हम पहली दो डेरिवेशन करेंगे। तो थर्ड रहेगी कि डाइपोल की वजह से वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द स्पेस, एट एनी पॉइंट अराउंड द डाइपोल। ठीक है, डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट एनी पॉइंट। We will start with our first derivation, which is electric field due to a dipole at its axis from the center of the dipole. ठीक है, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि डाइपोल के लिए दो चार्जेस चाहिए, दे शुड बी ऑफ ऑपोजिट पोलैरिटी बट इक्वल मैग्नीट्यूड। अब दिस इज द सेंटर। अब ये आपको थोड़ी सी लाइट लाइन है, आई थिंक इट विल बी विजिबल टू यू। तो इससे x डिस्टेंस पे यहां पे वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो थोड़ा यहां पे इस डायरेक्शन, इस डिस्टेंस पे। और सिमिलरली जब हम यहां पे कैलकुलेट कर लेंगे, वी विल सी दैट अगर राइट पे जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वेदर इज इट सेम ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट पे भी अगर मैं सेम x डिस्टेंस लूं तो क्या वो सेम है? सो वी विल सी दिस। ठीक, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल नेम these two charges. I will call this to be 1 and this I will call it as 2. ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब सपोज आई ब्रिंग माई टेस्ट चार्ज हेयर, माई टेस्ट चार्ज इट विल बी अट्रैक्टेड इन दिस डायरेक्शन, है ना, बिकॉज ऑफ दिस वन चार्ज की वजह से जो कि माइनस क्यू है, इट विल बी अट्रैक्टेड इन दिस डायरेक्शन, है ना। अब सिमिलरली अगर मैं एक और सेम चार्ज को बिकॉज ऑफ टू सेकेंड चार्ज देखूं तो इट विल बी रिपेल्ड, क्योंकि हमारा जो टेस्ट चार्ज है इट इज ऑफ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। तो इसे मैंने E2 लिख दिया एंड दिस इज माई E1, है ना। अब अगर आप देखिए, मैंने E2 का एरो थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ किया है बिकॉज E2 इट विल बी हायर इन मैग्नीट्यूड देन E1। उसका रीजन साफ है, क्योंकि अब दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, पर इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम टू चार्ज इट इज स्मॉलर। तो इट मींस E2 इट विल बी ग्रेटर देन E1, है ना, क्योंकि अब फर्स्ट चार्ज का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से वो ज्यादा है ना। फर्स्ट चार्ज का अगर मैं सिर्फ डिस्टेंस ही लिखूं तो इसका डिस्टेंस है जो इट इज L प्लस एक्स, इसका जो डिस्टेंस है दैट इज L माइनस एक्स, और x माइनस एल, है ना, x माइनस एल ही है वो। तो मेरा जो E नेट है इट विल बी E2 माइनस E1, है ना। और E नेट की डायरेक्शन क्या होगी? इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हमारा E2 रहेगा विच इज डोमिनेंट, उसी डायरेक्शन में हमारा E नेट रहेगा। और मेरा जो डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट है, इट विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, अभी हमने डिस्कस किया है ना। तो इट मींस अब जब मैं एक्चुअली देखता हूं एक्चुअली तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और डाइपोल का डायरेक्शन है दैट इज सेम। ठीक है, मैं एक बार लिख भी देता हूं, इन एक्सियल डायरेक्शन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, जिसे हम P से लिखते हैं, एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। इन एक्सियल डायरेक्शन, इन एक्सियल
लाइन लिख देते हैं, इन एक्सियल लाइन, ठीक है, क्योंकि हम एक्सेस की बात कर रहे हैं कि दिस इज द एक्सेस, ये एक्सेस है जो दो चार्जेस को ज्वाइन कर रहा है, दिस इज द एक्सेस, और हम इसी एक्सेस पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट इन एक्सियल लाइन, है ना। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो एक्सेस पे हो, वी ऑल्सो कॉल इट एज ई एक्सियल, है ना, तो आई ऑल्सो कॉल इट एज ई एक्सियल। अब आई नो माई ई नेट, इट विल बी ई टू माइनस ई वन, तो मैं अगर ई वन देखूं तो आई नो इट विल बी के, जो कि कांस्टेंट है, क्यू बाय आर स्क्र, आर स्क्र इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस किसका, चार्ज वन का, हमने नाम दिया है ना इसे वन चार्ज, और इस पॉइंट तक का, तो ये डिस्टेंस क्या है, यहां तक एल हो गया, इट इज एल अप टू हेयर प्लस एक्स, क्योंकि ये एक्स है ना, तो दिस इज एक्स प्लस एल द होल स्क्र। सिमिलरली हमारा जो E2 है, इट विल बी के क्यू, है ना, और ये वाला डिस्टेंस, अब सिर्फ ये वाला डिस्टेंस है, तो ये वाला डिस्टेंस अगर आप देखें तो इट विल बी एक्स माइनस एल, और जो हमारा ई नेट है, इट इज इक्वलेंट टू E2 माइनस E1, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दूंगा, तो इट विल बी के क्यू बाय एक्स प्लस एल होल स्क्वायर माइनस, सॉरी इट विल बी E2 माइनस E1, है ना, तो इट विल बी एक्स माइनस एल होल स्क्वायर माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एल स्क्वायर। तो आई नो आई कैन टेक के क्यू कॉमन आउट ऑफ दिस, so I am only left with 1 upon x minus L square minus 1 upon x plus L square. So I will write this over here, or yeah, I will for time being I will utilize this space. So I will take KQ, और मैंने जब LCM लिया, it is x minus L whole square into x plus L whole square, or this it becomes x plus L square minus x minus L square, and now I will write it over here, so I will be left with KQ. अब I opened it, तो जब मैंने ओपन किया, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2XL माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, है ना, जो मैंने जब ये स्क्वायर खोला, और साथ में ये नेगेटिव भी तो कंसिडर करना पड़ेगा मुझे, तो x माइनस एल स्क्वायर, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, सॉरी प्लस एल स्क्वायर माइनस 2XL, है ना, तो ये अब जब माइनस भी साथ में, तो दिस विल आल्सो बिकम माइनस, दिस विल आल्सो बिकम माइनस, एंड दिस विल बिकम प्लस, तो वही मैं लिख रहा हूं, तो इट विल बी प्लस 2XL। तो ये तो हो गया हमारा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ गया, इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ये क्यों हुआ, क्योंकि वी नो दैट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, तो इस केस में हमारा a है x, b है l, तो दिस इज a, दिस इज b, दिस इज a, दिस इज b, और स्क्वायर कॉमन ही है, स्क्वायर दोनों पे है, तो दैट इज व्हाई वी टुक द स्क्वायर आउट, है ना, तो हमने स्क्वायर आउट ले लिया, and inside we were having a minus b into a plus b, so that is why we wrote it like this. अब अगर यहां से देखें, this cancel out with
this cancel out with this, we are only left with kq. So this 2xl plus 2xl, so it will be 4xl divided by x square minus l square the whole square. ठीक है. अब एक छोटी सी बात देखिएगा, मैं इस 4 को स्प्लिट कर रहा हूं. आई एम राइटिंग दिस 4s 2 into 2, तो इट मीन्स आई हैव 2k q and I have 2xl divided by x square minus l square the whole square. तो अब इस थोड़ा सा इस टर्म को देखिए आप. आई एम राइटिंग इट एज 2k ups 2k l. I'm writing it as 2kl into q l नहीं, यहां पे मैंने 2k तो लिख दिया. Instead of l I am taking x here and I am writing q into 2l divided by x square माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर, है ना. तो ये देखिए मैंने इस बस 2 को इधर उधर लिख दिया है ना. 4 को मैंने स्प्लिट कर दिया 2 into 2 में, तो ये आ गया. अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखूं वो 4 ही बनेगा. तो यहां k के साथ क्यू था, इंस्टेड ऑफ आई राइट x ओवर हेयर, है ना. क्यू के साथ मैंने क्या लिख दिया, आई रोट 2l ये था. एंड आई डिड इट इंटेंशनली क्यों, मेरा रीजन क्या था ये करने का. अगर आप इस क्वांटिटी को देखें तो दिस इज द डाइपोल मोमेंट, है ना. तो इसे हम p से रिप्रेजेंट करते हैं. डाइपोल मोमेंट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. चार्ज q है और डिस्टेंस 2l है. तो इट मींस वी हैव 2kx इंटू p, है ना. अब डिनोमिनेटर में देखिए x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं. l इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, है ना. तो हमारा जो x है इट इज वेरी वेरी स्मॉल, सॉरी हमारा जो x है l है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल देन x, है ना. l दो, हमने कंडीशन ही डाइपोल का ये रखा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का, कि दो चार्जेस में डिस्टेंस जो है इट शुड बी इनफाइनाइटली स्मॉल. या तो वो न्यूटन मीटर में रहेगा या माइक्रोन में रहेगा. तो l बहुत स्मॉल है इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं. और अगर l इज स्मॉलर देन x तो l स्क्वायर तो उससे भी स्मॉल होगा. तो इसका मतलब क्या है कि वी कैन नेग्लेक्ट दिस एल स्क्वायर. तो इट मींस डिनोमिनेटर में अब मेरे पास ये टर्म जीरो हो गया, ये एल स्क्वायर इट बिकेम जीरो. सो इट मींस आई एम ओनली लेफ्ट विद x रेज टू द पावर 4, और ये जो मेरा एक x भी है इट विल कैंसल आउट विद दिस. सो इट मींस आई एम ओनली लेफ्ट विद 2kp by x cube. So this is my E net, or I also call it as electric field or axial electric field, and I represent it with EA. So this is the symbol which I use. So this is my final electric field intensity due to a dipole at distance x from the center, है ना. और इसे I also call it to be axial electric field, क्योंकि ये जो एक्सेस था इन दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाला जो एक्सेस था ये वाला, ये एग्जैक्टली उसी पे लाई करती है और इसकी डायरेक्शन भी वही है जिस डायरेक्शन में हमारा डाइपोल मोमेंट है. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर द टाइम बीइंग. तो ये तो हो गया हमारा
फर्स्ट डेरिवेशन अभी हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन ए एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर। तो जब आप देखेंगे उसे थोड़ा आपको और ज्यादा समझ होगा। तो अभी हमें इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट। ये जो ग्रीन कलर में आपको पॉइंट दिख रहा है, वी हैव टू कैलकुलेट ऑन दिस। तो अभी this is the dipole. It is separated by the distance 2l. Center to one charge distance is l, center to other charge distance is l. अब अगर मैं चार्ज से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस देखूं, इट इज r. अब अगर मैं बिकॉज ऑफ दिस, जो मैं इस चार्ज को आई नेम इट टू बी चार्ज 1, इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा, इट विल बी एक्ट along this direction, जिस डायरेक्शन में E1 आ रहा है हमारा। क्योंकि मैं टेस्ट चार्ज रखूंगा, माई चार्ज इट विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द चार्ज 1, है ना। और सेम अगर मैं चार्ज 2 की तरफ से देखूं, ये मेरा चार्ज 2 है जो आई एम कीपिंग एंड टेस्ट चार्ज एट दिस पॉइंट, जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो माई चार्ज इट विल टेंड टू मूव इन दिस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मेरा ये एरो है ना। अब ये दो एंगल हैं जो दे आर थीटा एंड थीटा, है ना, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्योंकि ये डिस्टेंस जो है इट इज एग्जैक्टली एट द सेंटर, ये डिस्टेंस सेम है दोनों के केस में, इट इज आर एंड आर, तो दिस एंगल दे विल आल्सो बी इक्वल। अब ये एंगल थीटा है, तो आई नो दैट दिस एंगल इट विल आल्सो बी थीटा, ठीक है, बिकॉज दे आर दिस इज लाइक दे आर द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, दिस टू लाइन्स दे आर पैरेलल, so this angle will be equal to this and this angle it will be equal to this. अब मैं अगर component ड्रॉ करूं, E1 का component in this direction it will be E1 cos theta, it will be in this direction E1 cos theta, and similarly my E2 cos theta it will be in this direction। जो मैंने इस तरह से I will show you, just I will show you, पहले एक बार समझ लीजिए। तो this will be E1 या E2 cos theta, और इस डायरेक्शन में I will be having E2 sin theta, and in this direction I will again be having E1 sin theta, है ना, कुछ इस तरह से they will look like this। cos theta it will be acting in this direction, and similarly my E2 cos theta it will be acting in this direction, है ना। But my E1 sin theta it is acting in this direction, E1 sin theta, and similarly my E2 sin theta it will be acting in this direction, है ना। अब एंगल सेम है, चार्ज सेम है, दिस टू दे आर एग्जैक्टली सेम, सो दे विल नलीफाई ईच अदर्स इफेक्ट। तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है एट दिस पॉइंट, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ E1 cos theta प्लस E2 cos theta। तो यही हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, है ना। और क्योंकि इस बार हम परपेंडिकुलर एक्सिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाई वी नेम इट एज ई परपेंडिकुलर। तो हमारा जो ई नेट है, वी नो दैट E net it will be sum of this two, E1 plus E2 cos theta and cos theta, ठीक है। अब we know that our E1 it is equivalent to E2। रीजन आपको पता है, डिस्टेंस ये सेम है, डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस सेम है। सिमिलरली डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर इट इज सेम, है ना। डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो E1 E2 के इक्वल ही रहेगा। और इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इट विल बी K Q, और डिस्टेंस क्या है, वी हैव ऑलरेडी रिटन इट एज R स्क्वायर, है ना। अब
जनरली वी आर नॉट गिवन विद द आर स्क्वायर हमें डिस्टेंस पता नहीं है, हम कैलकुलेट कर रहे हैं एंगल से, बिकॉज वी आर ऑलरेडी गिवन विद द एंगल, वी नो दिस एक्स, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो वी कैन डू दैट। पर वैसे अगर इस ट्राइंगल में देखें हम, वी अगर मैं मान लीजिए इसे कहूं ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी, my r square it will be equivalent to x square plus l square, है ना, बेसिक पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेन्यूज सम इज इक्वल्स टू द बेस प्लस द परपेंडिकुलर सम। तो मैं वो यहां पे लिख दूंगा, my e1 e2 they are equal and they are equivalent, now they became equal to x square plus l square the whole square। ठीक है, तो ये हमें बेसिक सी एक इंफॉर्मेशन है, और साथ में हमें यह भी पता है कि माई ई नेट, अगर मैं यहां से देखूं ई नेट, इट इज E1 cos theta plus E2 cos theta, and E1 E2 they are equal, so I write them into 2E cos theta, है ना, and I already know what my E is. E is equivalent to E1 and E2, और वो हमारी E है, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड अवर E, सो इट विल बी इक्वलेंट टू 2KQ बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर द होल स्क्वायर, और हमारा साथ में cos थीटा भी है ना। अब अगर cos थीटा को हम लिखें इन टर्म्स ऑफ L एंड R, तो वी नो दैट अवर, पहले cos थीटा ही देख लेते हैं क्या है। cos थीटा इट इज इक्वलेंट टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, तो थीटा का एडजेसेंट क्या है, इट इज L, हाइपोटेन्यूज क्या है, इट इज R, है ना, cos थीटा का। अगर मैं यहां से cos थीटा कैलकुलेट करूं, एडजेसेंट इट इज L एंड हाइपोटेन्यूज इट इज R, तो नाउ आई हैव 2KQ डिवाइडेड बाय x square plus L square the whole square into L by R, है ना, ये R है and this is L। तो अगर मैं अब now I will write it over here, अब I know the value of R, मैं R में अपना इक्वेशन रखना नहीं चाह रहा, because I will not be given with R, I will either be given with L, which is distance between two charges, or I will be given with X। X क्या है, X हमें क्या बताता है, it tells us the distance or point at which I have to calculate electric field in perpendicular direction। तो I am only trying to remove my R square, or sorry R, तो it will be L by, अब इसी को देख लूं, अगर मैं, मेरे पास अब सिर्फ R है, तो इट मीन्स इट विल बी x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2। अगर मैं इसे थोड़ा सा और रिफाइन करके लिखूं, इट विल बी 2KQ इंटू L डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सो ये पावर्स हैं जो ऐड हो जाएंगी, बिकॉज बेस इज सेम, है ना, तो पावर्स हमारी ऐड हो गई, इट विल बी 2 प्लस 1/2। सो छोटी सी बात का ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट एक्स स्क्वायर, दिस इज नॉट स्क्वायर ऑफ होल, क्योंकि हमने आर स्क्वायर का वैल्यू पुट किया था ना, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो दैट इज नॉट whole square, it will be only like this, so it means this power will also not be there, so it means it will be 1 plus 1/2, so it will be 3/2 into L, वो हमने ऑलरेडी लिख दिया है। अब जैसा हमने पिछले केस में किया था, we wrote it like this, it will be K, K मैं जस्ट रीफ्रेम कर रहा हूं, तो K इंटू Q इंटू 2L। अब ये इसे देख के आपके दिमाग में कुछ आया होगा, इट विल बी डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू द पावर
3/2, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, इट विल बी k इंटू डाइपोल मोमेंट, क्योंकि वी ऑलरेडी न्यू दिस दैट डाइपोल मोमेंट इट इज इक्वलेंट टू चार्ज into distance between the two charges for a dipole, and it will be divided by again देखिए अब x square plus l square है, we already knew this कि हमारा x है जो it is large in comparison to l, and x square it will be even more larger than l square. So it means we can neglect our x square, yeah, we can neglect our L square in comparison to x square, है ना. So it means we are only left with x square, it will be, तो ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा x square raised to the power 3/2, क्योंकि L square को तो we made it almost, we neglected it and this is 0 from now on. तो it means और ये L भी सॉरी P ही है वहाँ, ठीक है. तो it will be K P by x cube. So this will be my electric field at a perpendicular from the center, है ना. तो x डिस्टेंस पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से रहेंगी, है ना. अब एक बार जस्ट अगर थोड़ा सा हम रिमाइंड करें तो दिस इज द इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड and we represent it with this. इससे पहले previous derivation में we calculated the axial electric field. It was 2kp by x cube, है ना. तो अगर हमारा x सेम है, एक सेम डिस्टेंस सेंटर से अगर हम सेम डिस्टेंस एक्सिस की तरफ लें और सेंटर से सेम डिस्टेंस हम परपेंडिकुलर की तरफ लें, तो एक्सियल की तरफ जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है इट विल बी ट्वाइस ऑफ द इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड. एक तो ये बात होगी, है ना. दूसरा, अगर आपको याद हो, हमने देखा था कि जो डायरेक्शन है इन केस ऑफ एक्सियल, माय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट दे वर इन सेम डायरेक्शन, है ना. अब इस केस में डायरेक्शन देखते हैं. अब हमें एक चीज तो पक्का श्योर है कि जो डाइपोल मोमेंट है इट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सॉरी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. जो हमारा डाइपोल मोमेंट है इट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज. तो डाइपोल मोमेंट का तो डायरेक्शन फिक्स हो गया. अब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज in this direction. So it means equatorial electric field, it is always opposite to the direction of dipole moment. ठीक है. So this was our second derivation, and these are some of the important point which you have to remember. कि axial electric field it is always twice of the equatorial electric field when we are taking it at a same distance, है ना. और एक्सियल में जो डायरेक्शन है इट विल बी इन डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, वेयर एज इन इक्वेटोरियल आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी विच यू हैव टू रिमेंबर. तो ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, द एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड. What is their magnitude and what about their direction in comparison to the dipole moment. अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पे बेस्ड, ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा और अच्छे से बिल्ड हो पाए ओवर द डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो वी आर गिवन विद दिस न्यूमेरिकल, वी आर गिवन टू चार्जेस, वन इज दिस -2q एंड अदर इज +q, है ना. और ये ओरिजिन दे रखा है एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस. अगर देखें तो डिस्टेंस a है, एंड सिमिलरली सिस्टम में जो एक थर्ड चार्ज भी प्रेजेंट है, तो इस और इस चार्ज में जो डिस्टेंस है वो भी a है. अब दे आर नॉट मेकिंग ए डाइपोल, ये तो हमें पता लग गया. रीजन इज
चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। ये -2 क्यू है, ये क्यू है, एंड सिमिलरली ये क्यू है। अब ना तो ये दोनों डाइपोल बना सकते हैं क्यू एंड क्यू, रीजन इज दे आर ऑफ सेम पोलैरिटी। डाइपोल के लिए पोलैरिटी ऑपोजिट चाहिए। अब ना ये -2 क्यू और क्यू बना सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड भी सेम चाहिए। तो वट इफ आई राइट दिस, आई रिप्रेजेंट द सिस्टम लाइक दिस। तो मैंने -2 क्यू को माइनस क्यू लिख लिया, -क्यू। अब यू विल एग्री विद मी ऑन दिस। आई हैव टू डाइपोल मोमेंट्स। एक तो ये हो गया, आई नेम इट टू बी P1, and other dipole, it is this, I name it to be P2, है ना। अब डिस्टेंस दोनों में सेम है, A एंड A। देखिए डिस्टेंस दोनों में सेम है, A एंड A। इट मीन्स मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, एंड एंगल बिटवीन देम इट इज 90। तो अब डाइपोल मूवमेंट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, राइट, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस। इनका जो रिजल्टेंट होगा इट विल पास समवेयर लाइक दिस, है ना। और रिजल्टेंट अगर मैं कैलकुलेट करूं, माय पी नेट, इट विल बी इक्वलेंट टू अंडर द रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, है ना, और +2 P1 P2 cos थीटा। अब एंगल दोनों में 90 है, तो दैट इज वाई दैट टर्म विल बी 0 लाइक दिस, P1 P2 cos थीटा। तो एंगल 90 है, तो दिस टर्म इट विल बिकम 0, सो आई विल बी ओनली लेफ्ट विद दिस। अब मेरा P1 और P2 दोनों इक्वल हैं, आई कैन इजिली कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ P1 P2। अब you already know that P1 and P2 which are dipole moment, they are equal to product of charge into distance between them। अब distance a है, it is not 2l, वो हमने वैसे रिप्रेजेंट किया था। अब बस हमें चार्जेस के बीच में डिस्टेंस लेना है, यू शुड बी केयरफुल ऑन दिस। अब नाउ if I plug in my this P1 and P2 into the equation for P net, I have this. So it will be 2 QA the square the under root. So it means it is equivalent to under root 2 into QA. So this will be my net dipole moment in this system. ठीक है। तो इस तरह से जरूरी नहीं है कि you are always given with the exact dipole in a system, but you have to make modification in such a way that you end up with a dipole if it is possible, जैसे हमने इस केस में किया है। So with this we come to an end of today's lecture. Today we discussed the axial electric field and we discussed the equatorial electric field. Now we are left with the third very important derivation, which is related to electric field at any point within the space due to a dipole. So we will do that in our next lecture, and we will also solve some more numericals, which will be really important from the competition point of view. I hope you enjoyed today's lecture, and surely we will come with such lectures in the future also. बहुत लेक्चर्स के साथ आएंगे, एंड होप यू विल, वो आप सभी के लिए बेनिफिशियल होंगे, नॉट ओनली आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स दिलवाने के लिए, बट आल्सो वो आपको हेल्प करेंगे टू क्रैक सर्टेन कॉम्पिटिशन। ठीक है। सो विद दिस आई विल से यू बाय, एंड आई विल आल्सो रिक्वेस्ट यू टू काइंडली like and subscribe our channel if you have not done it yet. Thank you.